In the last lecture, we have studied various types of molding processes, uh, namely green sand molding. We also saw how the green sand looks like and how the molding process is done, how mold is formed, and we also studied getting system parts, that is the pouring basin, then sprue cup, then runners, gate, risers. So that part we studied last time. Then we saw green sand molding, dry sand molding, CO2 molding, and finally shell molding. So that shell molding is in front of you now. So this process we were studying and shell molding steps in details. Various versions available with me, various figures that we saw. Now we will see shell molding. Sorry, investment casting. Okay, investment casting. Uh, so here what happens is this particular casting process is used for precision castings or intricate shaped castings, hmm, which cannot be made by your regular casting process. Basically, wax pattern is used. So wax is very easy to scrape to give shape. So wax pattern is used. Okay, and lost wax. This process is also known as lost wax process. First, what happens? One pattern is created to make wax pattern. So see here, what we do is just a minute. I will show you. First, what we do, one pattern is made to make a wax pattern. Okay. Then this wax pattern is made using the pattern box. Then this wax pattern is attached to one stem. Okay, so there is one cylindrical portion here. You can you can look here. This is known as stem. Okay, for this stem or pole, these wax patterns are attached. Here you can attach wax pattern. Okay, like this. It means that in one pass you are going to produce many castings. Okay, now what happens, this shell is built now, means various wax patterns you are attaching at regular interval here. Okay, and around the periphery, not only two sides, around the periphery जितना बैठेगा उतना. So ये shell आपने build किया. अभी हमको क्या करना है कि इसको आपको सिरेमिक स्लरी में डिप करना है. इस शेल को आपको सिरेमिक स्लरी में डिप करना है अंदर. तो क्या होगा, सिरेमिक इसके ऊपर आ जाएगा, वैक्स पैटर्न के ऊपर सब सिरेमिक का कोटिंग आ जाएगा. अब हमको क्या करना है, डीवैक्सिंग करना है. डीवैक्सिंग क्या करना है, हमको इसको हीट करना है. हीट करने के बाद क्या होगा, सिरेमिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो सिरेमिक को कुछ नहीं होगा, सिरेमिक शेल तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन अंदर का ये जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगा. सो दैट इज नोन एज डीवैक्सिंग और बर्नआउट. अब क्या हो जाएगा, ceramic patterns or ceramic cavity have been created, and now that ceramic cavity has been filled by molten metal. ये होने के बाद उसको नॉकआउट करने का, ऐसा ऐसा हिलाने का और वाइब्रेशन देने का उसको, या शॉर्ट ब्लास्टिंग और एयर ब्लास्टिंग करके और वाटर ब्लास्टिंग, ऐसा अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है जिससे आप लोग सिरेमिक शेल्स निकाल सकते हैं. And inside the cavity which is filled by molten metal remains. तो ये ऐसा रहेगा. बाद में इसको इंडिविजुअल पैटर्न्स को हैक्सॉ से आप लोग काट लो और आपके छोटे छोटे पैटर्न जो इंट्रिकेट शेप के वो बना दो. सो दिस इज अ फिनिश कास्टिंग. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग. ओके, देखो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के ये जो सिरेमिक स्लरीज है वो बाद में भरा जा रहा है. और ये सिरेमिक स्लरी कैसे तैयार करते हैं, वैक्स पैटर्न को सिरेमिक स्लरी में डुबा के. ओके, so this again work process you can see, wax pattern is made. This is that a wax assembly dipped in ceramic shell, then the ceramic shells are formed around wax pattern, dewaxing किया,
wax will be burned out. Only ceramics remain, keeping the cavity. Cavity is filled by molten metal. उसको वाइब्रेट करो, नॉकआउट करो, सिरेमिक निकाल दो, रिमेन इज मेटल. ओके, so cut down these various small parts, you will get lot of cutting in one shot. So ये प्रोसेस देखने के लिए हमको ये देखो यहाँ भी वो दिखा है. इसके पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, so that will be best. पहले वीडियो देखो, then we will see this entire process. यहाँ पे एक दो ऐसे प्रोसेस स्टेप्स भी दिए. ओके, so I will go to the video. This video is very good video. Just now I also saw. मैं खुद खुश हुआ खुद के ऊपर. P सेकंड नहीं है, सॉरी. इसके लिए हमको इसमें जाना है, कास्टिंग डिजाइन. इसमें फाउंड्री 2 में मैंने ये किए. इन्वेस्टमेंट कास्टिंग कहाँ गया? या now you see this video. These are various ranges of parts that can be formed by investment casting. Intricate parts, complicated parts that can be formed. First part is mold making. आपको जो वैक्स पैटर्न बनाना है उसका मोल्ड. ओके, तो उसको वैक्स भर के आपने वैक्स तैयार किया. अभी ये ब्लू कलर का जो है वो वैक्स है. ये वैक्स पैटर्न बना दिया. देखो ये कॉम्प्लिकेटेड शेप है थोड़ा सा कास्टिंग का. एक मोल्ड रहेगा वैक्स पैटर्न बनाने के लिए, तो आपने वो वैक्स पैटर्न बना दिया. अभी आगे जाएंगे. ये देखो ये वैक्स पैटर्न्स बना दिए उन्होंने. नंबर ऑफ वैक्स पैटर्न बना दिए वैक्स फिल करके. दिस इज हैविंग द सेम शेप as that of your casting. Same shape, near net shape. हाँ, ये देखो ये जो बीच में जो स्टेम है ना, ये देखो ये जो स्टैंड और स्टेम यू कैन सी, इसको अटैच किया. चारों साइड में अटैच किया. 1 2 3 and 4, आई थिंक मे बी 5 ऑन बैक साइड. 5 साइड का है. हाँ, पेंटागोनल है ये. तो 5 into 3 15 ये तो आपको दिख रहे. अभी इसको सिरेमिक स्लरी में डाल दिए. सिरेमिक स्लरी में उसको डुबा दिया. देखो सिरेमिक स्लरी में उसको ये किया. बाद में सैंड भी अप्लाई किया उसके ऊपर स्ट्रेंथ बनाने के लिए. सिरेमिक सैंड ये उसके ऊपर अप्लाई किया तो स्ट्रांग हो गया ना आपका मोल्ड. तो उसको बाद में अगला प्रोसेस है डीवैक्सिंग. डीवैक्सिंग में क्या होता है मालूम है क्या? वैक्स तो मेल्ट होके चला जाएगा तो कैविटी तैयार होगा, वो सेम शेप रहेगा जो बाद में फिल करने के बाद ये देखो ड्राइंग करने के बाद वैक्स पूरा निकल गया और ये सिरेमिक रह गया. सिरेमिक और सैंड मोल्ड, उसके ऊपर का सैंड का मोल्ड ये रह गया. इसको फिल करो आपको और कट करो अलग अलग शेप में. इसको थोड़ा सा शेल स्लरी एंड सैंड ये देखो बाहर निकाला है उन्होंने अंदर डुबाने के बाद. हाँ, ये देखो ये तैयार हुआ मोल्डिंग के लिए. अभी एडिशनल ड्राइंग टाइम थोड़ा सा और थोड़ा ड्राई करो. जो भी कुछ है थोड़ा बहुत चिपक गया होगा वैक्स इधर उधर, उसको भी निकालना पड़ेगा. हाँ, सो कंप्लीटेड सिरेमिक सेल्स. ये देखो you can read also whatever they are showing there. ये देखो कितना मस्त है. सिरेमिक shells are processed in a steam autoclave to melt the wax out. हाँ, और हीट किया इसको हाई टेम्परेचर बर्नआउट. इससे क्या होता है आपका जो मोल्ड है ना वो हार्ड होता है. वो सिरेमिक मोल्ड है ना जो बनाया हुआ वो थोड़ा हार्ड होता है ताकि बाद में हम मेटल डालने के बाद वो टूट ना जाए. फायर्ड सिरेमिक मोल्ड, तो उसको थोड़ा हीट दिया है. देखो ये फ्लेम आपको दिख रहा है, इस फ्लेम से इसको थोड़ा हीट वगैरह कर दिया.
कभी कभी फर्नेस भी रहता है बड़ा साइज का, उनका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का स्पेशल शॉप रहेगा तो उनका खुद का अपना उनका फर्नेस रहेगा। अभी ये मेटल कास्टिंग ये पोर कर रहे हैं हम लोग। आप लोग बोलेंगे ये स्टील तो नहीं दिख रहा है, ये क्या है? इट में भी इधर एल्यूमिनियम और व्हाइट मेटल, ये ऐसा दिखता है। हाँ ये ऐसा सिल्वर टाइप का। दिस इज नॉट आई थिंक दिस इज नॉट आयर। आयर में तो रेडिश दिखेगा, रेडिश और ऑरेंज कलर। ये जो है ना वो व्हाइट मेटल और एल्यूमिनियम, इसमें से एक है कोई तो। वो फील कर रहे हैं अभी। फील कर दिया। फील होने के बाद जैसे जैसे आगे आप यू गो एंड रीडिंग, देखो ये फील कर दिया। और से बाहर का ये हैमर से तोड़ रहे हैं, देखो ये चिपिंग हैमर से बाहर का जो कोटिंग है सिरेमिक का वो तोड़ रहे हैं। और अंदर तो कूल होके देखो कितना फिनिश है, देखो उसको क्या फिनिश है ये कास्टिंग को, देखो ये देखो व्हाट फिनिश, चमक रहा है वो। उसको ये देखो कितना मस्त दिख रहा है। कुछ जरूरत है क्या फिनिश करने की? That's why investment casting is giving a very good quality casting. कास्टिंग होते हुए भी वो जो अपना सैंड कास्टिंग जैसा रफ नहीं रहता है, नियर नेट शेप को रहता है वो, इतना अच्छा है। तो ज्यादा मशीनिंग वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है उसको। ओनली सर्टन पार्ट्स जहाँ पे थोड़ा सा प्रोजेक्टेड रहेगा कुछ पोर्शन, तो उसको कर सकते हैं। डायरेक्ट फिनिशिंग के लिए भी भेज सकते हैं, इस पे ग्राइंडिंग के लिए वगैरह या पॉलिशिंग के लिए भी भेज सकते हैं। देखो ये ग्राइंडिंग कर रहे हैं, देखो वो मतलब उसको फिन्स वगैरह रहेगा ना बाहर, शार्प एजेस वगैरह उसको निकालते, देखो कितना मस्त है ये पॉट्स वगैरह बनाएंगे नहीं। सो ये अच्छा क्वालिटी का ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ये देखो सैंड ब्लास्ट फिनिश मतलब है ना अपने फाउंड्री में, मतलब मैं किर्लोस्कर फाउंड्री में ये दोनों देखा है, सैंड ब्लास्टिंग एंड शॉर्ट ब्लास्टिंग भी बोलते हैं। इसके लिए मेटल का निकलना है तो शॉर्ट ब्लास्टिंग लगता है। शॉर्ट ब्लास्टिंग यानी मेटल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स रहता है, ऐसा बॉल्स छोटे छोटे, एक एक दो दो एम के। वो बॉल्स है ना कॉम्प्रेस्ड एयर से ऐसे उसके ऊपर मारते हैं और कास्टिंग के ऊपर। और कास्टिंग का अंदर एक ऐसा एक सिलेंडर रहता है, उसमें कास्टिंग डालते हैं और ऊपर से शॉर्ट ब्लास्टिंग का ऐसा मारा होता है। शॉर्ट ब्लास्टिंग मतलब मेटल बॉल। और सैंड्स भी रहते हैं, सैंडस्टोन छोटा छोटा, तो वो भी मारते हैं। तो वो ये जो फिनिश है ना वो और अच्छा आता है, मतलब बाहर का जो भी इम्प्योरिटीज है वो निकल देता है। तो वो सैंड ब्लास्टिंग और शॉर्ट ब्लास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग। सो वो भी रहता है फाउंड्री में एट द एंड। चिपिंग हैमर्स भी रहता है, न्यूमेटिक चिपिंग हैमर, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक चिपिंग हैमर ऐसा चिप्स निकालने के लिए थर 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 पूरा आवाज आता है फाउंड्री में, कान पूरा बस जाता है बच्चों। वो चिपिंग सेक्शन से बाहर निकलने के बाद कुछ सुनने को नहीं आता 2-3 मिनट। सो दैट इज अ साउंड देयर। तो दैट इज अ फीलिंग इफ यू गो टू सम फाउंड्री। बाद में एक फाउंड्री मैं आपको दिखाऊंगा, अहमदाबाद का एक फाउंड्री, उसका एक वीडियो है, बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब टोटल प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये अपने प्रोसेस सब होने दो, मैं आपको बताऊंगा वो भी। तो ये देखो ये कास्टिंग तैयार हो गया और ये सब मेजरमेंट चालू है। कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन विथ सेंसर टाइप प्रोब, यू कैन सी। और बाद में फिनिश मशीनिंग चालू है, कुछ कुछ पोर्शन को बाद में ड्रिलिंग वगैरह करना रहेगा, तो वो चालू है। सो दैट्स दे आर शोइंग, सो इट्स अ वेरी गुड वीडियो। देखो ये फिनिश्ड पार्ट तैयार हुए। ये रहा उसका मोम का कास्टिंग यानी वैक्स का कास्टिंग, और ये रहा उसका अपना एल्यूमिनियम का ये अपना कास्टिंग, मतलब ये आपका पैटर्न और ये कास्टिंग। देखो एकदम नियर नेट शेप आएगा नहीं, देखो क्या फिनिश है, देखो उसको मार्किंग वगैरह करके इज रेडी टू सेल। ये बाद में बोरिंग वगैरह किया है, देखो ये थोड़ा मशीनिंग करना पड़ता है अंदर बोरिंग, क्योंकि ये शेप बहुत भारी फिनिश चाहिए, क्योंकि उसमें दूसरे पार्ट का कुछ असेंबली होता है। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड शेप, दैट्स व्हाई इट इज इजी टू मेक बाय your investment casting process. So that is one. Now we will go to our earlier one, ये PPT, जहाँ पे देखो जो अभी हमने जो देखा वो वही है ना। ये देखो ये मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं। देखो हाँ, ये नीचे कैसा आया बाबा, ये ऊपर ही ठीक है। हाँ, टूल एंड पैटर्न मेकिंग। पहला तो वैक्स पैटर्न बनाया, बीच में वो जो असेंबली था उसको बना दिया, असेंबली टू द स्क्रू और स्टेम बना दिया। बाद में इसको कोटिंग में डिप कर दिया, बाद में डीवैक्सिंग किया,
बाद में वैक्स निकल गया, फिर पोर किया, पोर करने के बाद नॉकआउट कर दिया चिपिंग हैमर से, शाइन ब्लास्टिंग से, कास्टिंग निकाल दिया, कास्टिंग निकाल के फिनिशिंग किया, मशीनिंग मेजरमेंट ले लिया, देखो गेजेस दिखाए, एंड इट इज रेडी टू सेल. So that is the investment casting process. The range of casting और ये देखो इसका वैरायटी देखो कॉम्प्लिकेटेड शेप है. ऐसा सैंड कास्टिंग के बनाएगा क्या हम लोग? वाट लगेगा, पैटर्न पैटर्न बनाते टाइम में वाट लगेगा. ये तो ऐसा सोने का ऑर्नामेंट बनाने जैसा हो गया ये देखो ये कॉम्प्लिकेटेड शेप, ये कौन करेगा यार इतना सैंड कास्टिंग वुडन पर. ये तो इससे अच्छा है वो वैक्स पैटर्न बनाओ, नंबर ऑफ पैटर्न बनाओ, एक साथ ही बीच के स्क्रू और स्टेम को लगाओ और एक साथ बनाओ. ऐसा अलग अलग बनाते टाइम तो पसीना निकल जाएगा आदमी का. तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस इज हेल्पिंग us, is giving good quality near net shape, and complicated patterns can be easily made using wax. So this is about investment casting process. बच्चों समझ गया? Now give the feedback. हाँ सर. समझ गया ना? हाँ, इसमें इतने बार समझाने के बाद न समझने जैसा कुछ है ही नहीं. बट प्रोसेस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड न्यू थिंग वी लर्न. सिमिलरली दूसरा एक अभी नया प्रोसेस हम सीखने जा रहे हैं, वो है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. ये ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं. ये देखो ये ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और हॉरिजॉन्टल, इसमें दो वर्जन है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. तो हॉरिजॉन्टल बड़े साइज के लिए होता है, छोटे साइज के लिए वर्टिकल होता है. तो इसमें क्या होता है, ऐसा एक ड्रम रहेगा. ये बाहर का जो मोल्ड है ना, ये ड्रम रहेगा. ये ड्रम में हम लोग मोल्टन मेटल डालेंगे और बाद में इस ड्रम को घुमाएंगे यूजिंग दिस रोलर. ये जो रोलर है ना, ये दो रोलर है, देखो ये दो रोलर है, इसका ये साइड व्यू. ये इनफैक्ट तो ये दो रोलर है, ये दो रोलर घुमाएंगे तो ये ड्रम भी घूमेगा. ड्रम घूमेगा तो जो मोल्टन मेटल अंदर डाला है ना, वो पेरीफेरी में चला जाएगा, पेरीफेरी में चला जाएगा. और आफ्टर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन एक मस्त शेप तैयार हो जाएगा, पाइप टाइप. और आपका सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग बाहर आ जाएगा. मैं आपको उसका प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको. ये देखो ये प्रोसेस है उसका, अलग अलग वर्जन्स मैंने दिखाए. तो इसके बारे में मैंने थोड़ा मटेरियल यहाँ पे लिखा है. ये देखो ये अलग अलग फिगर्स मैंने नेट से निकाले, आपको जो अच्छा लगे आप करो. एक मोटर रहेगा, वो मोटर से रोलर घुमाएंगे, रोलर घूमेगा तो उसको ऊपर एक ड्रम है वो घूमेगा, एक साइड से वो बंद करेंगे, एक साइड से हम मोल्टन मेटल डालेंगे, वो पेरीफेरी में चला जाएगा. और ये लाल कलर का आपको दिख रहा है ना, ये टाइप का कास्टिंग बनेगा, यानी पाइप बन जाएगा. तो ये देखो ये 3D व्यू. हाँ, ये देखो ये रोलर, तो आपको फील आ जाएगा कि हाउ ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन the molten metal goes at the periphery, yeah, inner periphery of the pipe. That's why the name is centrifugal casting. So बड़ा पाइप अगर बनाना है तो हॉरिजॉन्टल प्रोसेस है. छोटे छोटे पॉट्स वगैरह भी बना सकते हैं कभी कभी, रिंग टाइप वगैरह. सो ऑल दीज आर फिगर्स. ये देखो ये एक्चुअल फोटो है अपना इंडस्ट्री का. देखो अंदर डाल दिया है उसको और वो घूम रहा है अंदर. अभी घूमने के बाद उसको आप बोलेंगे वो उसका थिकनेस कैसा करेंगे हम लोग कैलकुलेट. तो एक्चुअली क्या करना है कि उसका जो डायमीटर है वो मालूम है आपको, इनर डायमीटर मालूम है, प्लस जितना थिकनेस चाहिए उतना थिकनेस लेके हमको एक्चुअली उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा. और उतना वॉल्यूम ही हमको अंदर डालना पड़ेगा. थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला तो चलेगा, एक्स्ट्रा डाला तो क्या हो जाएगा कि पाइप तो एक्स्ट्रा डालेगा तो थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा. बाद में उसको मशीनिंग भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कम नहीं होना चाहिए. कम होने के बाद फिर और एक्स्ट्रा कौन डालेंगे, इसलिए थोड़ा सा उसका थिकनेस अगर जितना चाहिए उतना आप लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. वॉल्यूम कैसा निकलने का, इसका लेंथ मालूम है हमको सिलेंडर का, डायमीटर मालूम है, तो वो सिलेंडर का इसका क्या पाई आर स्क्वायर तो ये हो जाएगा ना, इसका एरिया हो जाएगा, पाई पाई स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा. वो पाई आर स्क्वायर में से ये थिकनेस माइनस करके जो आ रहेगा वो पाई आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा. यानी एरिया तो मिल गया इनटू लेंथ, ऐसा मिलेगा तो हमको उसका वॉल्यूम मिल जाएगा. तो उस वॉल्यूम के हिसाब से हमको ये लेना पड़ेगा. फिर वो इसकी डेंसिटी कितनी है वो देखनी पड़ेगी स्टील की. जैसे 7.3
kg per सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, सो उतना डाल के रॉ मटेरियल मतलब लैडल में से मटेरियल कितना लाने का उसको, और फिर लैडल का वॉल्यूम, ऐसा करके हमको एक मार्किंग करना पड़ेगा। उतना ही मोल्टन मेटल हम उधर डालेंगे तो वो बराबर उसमें फिट हो जाएगा। और ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल पोर्शन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप दे दो तो ज़्यादा अच्छा है। बाद में एक बोरिंग करके एक कट निकाल सकते हैं, लेकिन कम ना होने पाए। हाँ, कम होके फायदा नहीं, बाद में एक्स्ट्रा कौन डालेगा उसमें। अलग वही डायमीटर अंदर आके घुमाओ, दूसरा मोल्टन मेटल डालो, वो उस पर बराबर नहीं बैठेगा तो वन पीस के वो रिपेयर ही हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, क्वालिटी बिगड़ जाएगी। वन स्ट्रोक में जो ग्रेन अलाइनमेंट है दैट इज वेरी इसेंशियल। हाँ, तो ये देखो बच्चों, ये देखो ये मतलब तैयार किया है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से पार्ट और बाहर निकल रहे, उसको निकलने का भी एक फिक्सचर रहता है ऐसा बाहर निकलने का, नहीं तो वो खींचेंगे कैसा अंदर। ये लास्ट में थोड़ा सा उसका पार्ट है ना ऐसा एक्सटेंडेड है और उसमें अंदर एक ग्रू रहता है, वो ग्रू को ये जो बाहर वाला है ना ये पुल करने वाला, उस ऐसा ऐसा अंदर बैठेगा और उसको खींच के निकलेगा। ऐसा हाथ डाल के तो कोई कर नहीं सकेगा, हाथ ही उसमें मेल्ट हो जाएगा तो अपन लोग के गायब हो जाएंगे। टेम्परेचर कितना रहता है देखो बच्चों, रेड हॉट है ये 1530 से थोड़ा कम समझो। मतलब थोड़ा सा हार्ड होने के बाद 1200-1300 का टेम्परेचर है ये। तो आपका ये जो मटेरियल है ना ये भी ऐसा चाहिए कि वो मेल्ट ना हो जाए, मतलब ये हायर मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर चाहिए कि वो उसको टच होने के बाद वो मेल्ट ना हो जाए। 1530 तक तो अपना मोल्टन टेम्परेचर रहता है, वो 2000 तक हम मेल्ट करके लैडल से डालते हैं। तो इधर जब वो रोटेशन होता है तो वो फुल हवा लगता है ना उसको, सेंट्रीफ्यूगल इसमें फोर्स में घूमता है तो इसका टेम्परेचर कम होता है। फिर भी 1100-1200 के अराउंड है। देखो ये लाल कलर का है तो ये एक्चुअली ज़्यादा है, ये जो येलो है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये थोड़ा सा लाल है। बाद में ऐसा थोड़ा सा काला पड़ा जैसा दिखता है, मतलब थोड़ा चॉकलेटी शेड ऐसा रखता है। वो ऐसा रहता है कि एक्चुअली उसमें बाहर का जो सरफेस है ना वो एयर को एक्सपोज होता है ना, तो इमीडिएटली आयरन ऑक्साइड बनना चालू होता है, तो थोड़ा सा वो ब्लैकिश कलर देता है। कलर से ही मालूम पड़ता है, एक्सपीरियंस जो लोग हैं उधर के वर्कर्स को कलर से मालूम पड़ता है कि कब रुकना है क्या रुकना है ऐसा। हाँ, आप जल्दी करोगे तो वो पिघल जाएगा, तो उसको थोड़ा हार्ड भी होने दो ना तब उसको बाहर निकालेगा। सी द शेप एंड क्वालिटी ऑफ दिस पाइप। मैं आपको और भी पता था इसके इसमें मैंने सब मटेरियल वगैरह सब लिखा है। हाँ, तो मैंने बहुत सा मटेरियल ले ली है। ये जो ब्लू ब्लू बीज में दिख रहा है ये क्यों है मालूम है क्या? कभी कभी मैं इसमें भी गया आपका क्या कहते हैं उसको, हमारे नेट पे विकिपीडिया वगैरह उसमें भी गए हैं। ताकि क्या होता है ना विकिपीडिया में जाने का फायदा, हमारे हाथ से कोई पॉइंट निकल गया है तो विकिपीडिया टेक्स केयर ऑफ दैट। मतलब विकिपीडिया का क्या काम है, कोई पॉइंट ना छूट जाए, इसलिए वो दुनिया के सभी लोगों को ये करके उसमें से जो मोस्ट कॉमन है वो लिखते। तो हमारे हाथ से कोई पॉइंट अगर छूट गया ना तो विकिपीडिया भी हम लोग एक बार देखेंगे विकिपीडिया क्या कहता है। हाँ, ये दिया, अरे ये पॉइंट तो अपना रह गया, क्योंकि हम लोग एक ही पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कभी कभी, कुछ पॉइंट हमारे रह सकते हैं। तो वो भी मैंने मेरे नोट्स में इंक्लूड किया है। तो ये ब्लू कलर आपको ये शेड दिखेगा ना ये ब्लू कलर का, तो आप समझना मैंने विकिपीडिया से ले लिया है। और बाकी जो बनाए हुए मैंने दूसरे सोर्सेस से लिए। कुछ कुछ कभी कभी आपको इरेगुलर बीज में लगेगा ये 2-3 स्टेटमेंट सर ने क्या डाले, तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के उसमें डाले मेरे नोट्स के वगैरह कि वो पॉइंट छूट गए, तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट कंप्लीट जितना हो सके। हाँ? तो ये मैंने दिखाया आपको, वर्टिकल किधर गया यार, जस्ट अ मिनट। मैंने नोट्स में डाला था समय, वर्टिकल वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग दिख नहीं रहा है। जरा देखता हूँ अगर मेरे हाथ से मिस हो सकता है दूसरे किसी स्लाइड में गया होगा। जस्ट अ मिनट। वर्टिकल प्रोसेस, हाँ है ना, एक मिनट, हाँ एक मिनट। ये बच्चों को ये दिख रहा था, ये देखो ये कंप्लीटेड पाइप सेंट्रीफ्यूगल कास्टेड, मस्त है कि नहीं एकदम, ठंडा होने के बाद कितना क्वालिटी अच्छा है देखो। हाँ? सर्कुलर घूमने के बाद मस्त ग्रेन अलाइनमेंट रहता है। साउंड कास्टिंग यू गेट साउंड, वेरी साउंड। ये सर्कुलर पार्ट के लिए बहुत सुटेबल है। या ऐसा बनाते जाओ तुम लोग रोलिंग मेथड से, बाद में ये एंड में लाके वेल्डिंग करो, अरे कितना तकलीफ होगा। बेस्ट प्रोसेस है ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ऑल दी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग स्पेशल प्रोसेसेस है बच्चों। देखो इसका एक सिंपल फिगर तुमको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए
सिंपल फिगर, कुछ नहीं जमाना दूसरा रोलर बिलर, ये भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए ये वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, वर्टिकल प्रोसेस छोटे साइज के लिए। ये देखो छोटे सा, ऐसा नहीं है कि सिलेंड्रिकल ये करो, ऐसा कोनिकल भी कर सकते हैं, फ्रस्ट्रम ऑफ कोन वगैरह ये भी कर सकते हैं तुम लोग। ये देखो, और ये था, और एक, हाँ ये देखो प्रोसेस, और ये देखो ये वर्टिकल, ये देखो ये कोनिकल शेप के लिए छोटे साइज के लिए, बड़े साइज के लिए ये है, ये देखो ये पॉट, इट इज क्रिएटेड बाय वर्टिकल एक्सिस सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। क्या फिनिश है देखो, क्या जरूरत है क्या कुछ मशीनिंग वगैरह करने का, पॉलिशिंग करने का जरूरत नहीं, चमक रहा है देखो। हाँ ये देखो, सो गुड प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ये हॉरिजॉन्टल के लिए बड़ा पाइप, ये वर्टिकल के लिए छोटा सा पॉट, लाइक दैट। छोटा सा बैरल वगैरह बनाना है जो किसी पार्ट में अगर जाने वाला है, सिलेंडर लाइनर वगैरह इससे बना सकते हैं, सिलेंडर लाइनर इससे बना सकते हैं। बाद में उसको होनिंग वगैरह कर, होनिंग नाम का एक फिनिशिंग प्रोसेस है, बाद में तुम लोग देख लेना हाजरा वॉल्यूम 2 में। क्या क्या सिखाऊं बच्चों, इतने बड़ा बड़ा सिलेबस है, आपको क्या क्या सिखाऊं, ऐसा बैठेगा साल जाएगा इतना डिटेल, ऐसा है। तो ये देखो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग वर्टिकल, इसका फिगर हमने दे दिया। इसका आपको इसमें से जो चाहिए, इसका मैं पीडीएफ बना के आपको देने वाला है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। कल कॉलेज गया था मैं, वो बुक्स देखकर मेरा इच्छा हो गया वो लाने का, लेकिन वेट बहुत था, तो पूरा लैपटॉप भी फिर से लाना था, छाता, कल बारिश था, फिर पानी बॉटल ये सब पूरा भर गया मेरा बैग। फिर बोला इतना वेट कहाँ से लाओ, है मेरे पास मटेरियल इसलिए ले लाया। हाजरा वॉल्यूम 2 लाने के में मेरे को ये था, हाजरा वॉल्यूम 2, लेकिन मैं ला के करूँ क्या, आपको आपके पास होना चाहिए वो कॉपी। मेरी आई थिंक लाइब्रेरी इज ओपन, आप लोग जरा इंक्वायरी करके जाओ लाइब्रेरी में, कभी जो नियर बाय घाटकोपर विक्रोली रहने वाले लोग, और लाइब्रेरी से अगर बुक इशू होता है तो लेके आओ हाजरा वॉल्यूम 1 एंड 2। हाँ वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, हाजरा वॉल्यूम 2 जो है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी बाय हजरा चौधरी वॉल्यूम 2, ये आपको जर्नल लिखने में काम आएगा, पहले 5 एक्सपेरिमेंट लिखने में, बाद में जो हाजरा चौधरी वॉल्यूम 1 है वो पहले मॉड्यूल के लिए काम आएगा। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मैंने अभी सिखाया आपको। वी विल गो टू नेक्स्ट प्रोसेस। एक प्रोसेस है कंटिन्यूअस कास्टिंग, ये हमने थोड़ा सिलेबस में ऐड किया, पिछले टाइम नहीं था। कंटिन्यूअस कास्टिंग ये क्या है मैं बताता हूँ। कंटिन्यूअस कास्टिंग इज अ प्रोसेस जस्ट बिफोर रोलिंग, मतलब रोलिंग नाम की एक प्रोसेस है बाद में, मेटल डिफॉर्मेशन प्रोसेस। तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल बनता है, बेसिक स्लैब्स, ब्लूम्स, इनगॉट, तो ये आपको यहाँ से मिलेगा, मतलब कंटिन्यूअस कास्टिंग से मिलेगा। ये प्रोसेस क्या है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें ये स्कीमेटिक दी है, ये देखो, ये व्हाट इज ए व्हाट इज बी, इट इज गिवन हियर। तो ये दिखाने के पहले थोड़ा मैं 3D दिखाता हूँ आपको, क्योंकि 3D दिखने के बाद आपको थोड़ा सा कल्पना आ जाएगा इसका। ये देखो ये एक 3D प्रोसेस है, ये क्या है, नहीं ये तो उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट है कंटिन्यूअस कास्टिंग का। हाँ ये थोड़ा सा मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ मालूम पड़ता है, देखो ये रोलर्स इन कर्व पाथ, हाँ यहाँ थोड़ा सा मेरा ऐड करना रह गया। एनीवे मैं काम करता हूँ इसको, ये भी वही है ना, हाँ चलेगा ना, इधर इधर भी वही है और इधर भी वही है। हाँ तो ये देखो ये क्या है कि हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, कि हम लैडल से इसमें मटेरियल डाल देते हैं, लैडल से मोल्टन मेटल फर्नेस से लाते हैं और इसमें डाल देते हैं। ये पर्टिकुलर एक ये सब मोल्टन एक पाथ रहेगा यहाँ पे, एक ऐसा बड़ा स्क्वायर रेक्टेंगुलर ऐसा एक ये रहेगा बॉक्स, उसमें हम लोग डालते हैं। तो मोल्टन मेटल उसके नीचे में ऐसा स्ट्रीम है, ये यहाँ एक और यहाँ एक, तो ये क्या है, ये स्क्वायर टाइप का मोल्ड है ऐसा, ये जो है ना, हाँ ये स्क्वायर टाइप का ऐसा मोल्ड। तो ये इसमें डालने के बाद क्या होता है कि ये पूरा भर जाता है,
और इससे वो बाहर आने लगता है। ये पर्टिकुलर शेप, इसके अंदर का जो स्क्वायर शेप है ना, ये ऐसा बाहर आता है। अभी जो भी शेप आपको चाहिए कंटिन्यूअसली, वो शेप इसको दिया जाता है, यहाँ वाले मोल्ड को। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो, सो दिस इज नोन एज टन डिश। ये जो एक नंबर है ना, टन डिश, देन दिस इज रेक्टेंगुलर बात, और दिस इज बॉक्स, जिसमें आप ये जो है ना मोल्टन मेटल, ये आपने ये फिल किया। हाँ, ये पहले ये फिल किया तो ये नीचे गिरना चालू होता है। अभी आपको कंटिन्यूस चाहिए ना प्रोसेस, तो ये जब तक गिरता है ना, ये पानी जैसा एकदम स्पीडी नहीं जाता है, इसका एक आराम से उसका जाता रहता है, क्योंकि वेट है ना इसको, है हेवी। तो ये यहाँ पे गिरता रहता है, और यहाँ से दोनों साइड में इसका डिवाइड होता है ये। तो ये देखो, ये स्क्वायर टाइप का है, सॉरी रेक्टेंगुलर टाइप का है, या प्लेट टाइप है इसका। इसको समझो आपने प्लेट का शेप दिया, मतलब उतना ही क्रॉस सेक्शन दिया जहाँ से प्लेट बाहर आ सकती है, तो वो प्लेट आपको मिलेगा। एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप बोलेंगे कंटिन्यूअस कैसा? ये भरने के बाद ये कभी ना कभी तो खाली होना है ना, तो तब तक क्या होता है, ये है ना, ये 180 डिग्री पे घुमा सकता है। दिस इज नोन एज टर्न डिश। ये 180 डिग्री पे घुमा सकता है। मतलब ये जब तक खाली खाली होता है ना, तब तक ये नया भर के लाता है लैडल, और इसमें डालता है, और बाद में ये खाली होने के बाद इसको इमीडिएटली इधर लगा देता है, और बाद में ये खाली हुआ वो पोर्शन इधर आता है। तो ये 180 में टर्न होने से क्या होता है, टर्न डिश, जो जो भरा हुआ है उससे आपके फ्लो चलता रहेगा। ये हमेशा भरे हुए कंडीशन में रहेगा, दोनों साइड में आपका ये चलता रहेगा। और इधर सेट ऑफ रोलर से ये रोलर में से पास किया जाएगा। रोलर में से पास किया, देखो यू कैन सी द सेट ऑफ रोलर। रोलर में से इसको पास किया है, एंड यू गेट द डिजायर्ड शेप। अगर रोलर की गैप कम कर दी आपने, तो आपको थिन शीट मिलेगा। ओके, ये तो बेसिक थिकनेस आपको इनपुट मिलने ही वाला है रोलर को। लेकिन रोलर में ये जब एक साइड में जाता है, और धीरे 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 रोलर की अगर ये सेट ऑफ रोलर से रहता है, पहला सेट ऑफ रोलर, दूसरा सेट ऑफ रोलर, तीसरा सेट ऑफ रोलर। अभी ये पर्टिकुलर केस में तो गैप सेम है, ये और एक ये जो थिकनेस है वही थिकनेस ऐसा बीच में आएगा। बाद में जब आप रोलिंग करोगे, तो आप सेट ऑफ रोलर में अगर रोलर का गैप कम करोगे, दोनों साइड के जो रोलर है, वो टॉप साइड ऑफ द शीट एंड बॉटम साइड ऑफ द शीट, उसकी गैप कम करोगे तो आपको थिन शीट मिलेगा। और शीट थिन होगा तो आपका लेंथ भी बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम तो उतना ही है ना, तो थिकनेस कम हो गई तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, कीपिंग द विड्थ सेम बाय सम मींस। ओके, सो आपको शीट मेटल बनाना है, तो मतलब ऐसा जो हम बोलते हैं ना, शीट मेटल और पतरा बनाना है, थिन थिन बनाना है, थिक प्लेट बनाना है, तो ये इससे बनाते हैं। सो दिस इज, और फिर हमको आप बोलेंगे कंटिन्यूअस कास्टिंग है, तो आगे जाने के बाद क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल पे इसको गैस कट मारते हैं, तो उतने टुकड़े आपके काम आ जाते हैं। मतलब इधर समझो गैस कट मशीन है, और इधर पीछे एक स्टॉपर है, तो एक मार्क पोर्शन उतना लेंथ का यहाँ पर आने के बाद इधर अप्लाई करते हैं गैस कट। गैस कट हो गया, तो वो 10 फुट का हमारा एक शीट हमने तैयार किया, और वो एक साइड में रच दिया, एक साइड में। फिर आगे 10 फीट आने के बाद और उसको तोड़ो, फिर आगे 10 फीट, और तो ऐसे 10-10 फीट के ये टुकड़ा हम लोग उतने लेंथ के प्लेट जो चाहिए हमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वैसा तोड़ के वहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। सो दैट इज द प्रोसेस। यू कैन सी हियर कंप्लीट प्रोसेस है। देखो ये रोटरी टेबल, और ये दोनों साइड से है मोल्टन स्टील लैडल, या इसमें टन डिश, ये इसमें डालेंगे। ये 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 अभी इसमें डाल रहे, ये फिनिश होने के बाद 180 डिग्री घुमाएंगे, ये यहाँ आएगा, और ऐसा चलता रहेगा सेट ऑफ रोलर में से। देखो, और रिक्वायर्ड लेंथ पे इसको कट करेंगे। आगे आया, इसका जो शेयरिंग ब्लेड है, या इसकी जो गन है, ये गन जो मतलब कटिंग गन है, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग या प्लाज्मा कटिंग वाली एक गन रहती है। वो गन का जो पॉइंट है वो ऐसा घूमता रहता है, उसको इन द क्रॉस डायरेक्शन ऑफ द प्लेट। तो आगे इधर एक मार्किंग रहता है हमारा, ये मार्किंग तक प्लेट आई तो इमीडिएटली हम अप्लाई करते हैं, तोड़ देते हैं। आप बोलेंगे वो तो कंटिन्यूस आगे जा रहा है, तो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा डायमेंशन तो होता है, कम नहीं होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा डायमेंशन होने के बाद में मेजर होके उसको कट कर देते हैं। तो फिनिशिंग, इन द फिनिशिंग प्रोसेस, सो दैट इज द
प्रोसेस। और ये रोलर आगे आने का, रोटेट होने का ये आरपीएम कम रहता है, मतलब जैसा जैसा भरेगा वैसा 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 वो आगे आएगा। And now because this process is continuous, the name of the process is continuous casting. तो ये है ना, इसके आगे बाद में मेटल फॉर्मिंग है, रोलिंग वगैरह सब। तो कोई भी रोलिंग इंडस्ट्री में आप जाओगे ना तो स्टार्ट आपका यहाँ से होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये हमारे बच्चे पहले प्रोडक्शन में प्रोजेक्ट करने जाते थे। मुकुंद आयरन नाम का एक इंडस्ट्री था पहले, अभी बंद है क्या चालू है मालूम नहीं। कड़वा में मुकुंद आयरन बहुत फेमस। तो ये ऐसा ये बनाते हैं पूरा, शीट्स, ब्राइट बार्स, ब्लूम, स्क्वायर रॉड्स, ये सब ऐसा बनाते हैं। तो कंटिन्यूस कास्टिंग। ये देखो ये भी ये शेप एक दिखा है आपको, अलग अलग फिगर में दिखाता हूँ तो यू विल कम टू नो। देखो ये स्क्वायर टाइप का, इसका कैसा सेटअप है ये देखो, ये उसका स्कीमेटिक फिगर है। लैडल, टन डिश बोले तो ये ओ वाला 180 डिग्री वाला। फिर ये मोल्ड में से लिक्विड पूल आएगा, जो शेप दिया है वही रोलिंग के हिसाब से धीरे 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 आगे जाएगा। और आगे जाएगा, ये कटिंग पोर्शन वाला टॉर्च है, वो जितना आगे जाएगा उतना मार्किंग आने के बाद उसको कट करेंगे, ऐसे स्लैब बनाएंगे और रचेंगे बेचने के लिए। हाँ, ये इधर है देखो, ये देखो रिक्वायर्ड लेंथ के बनाया ना, ये राउंड वाला बनाया तो राउंड वाला यूज करो, ये जो है वो राउंड वाला यूज करो तो राउंड बार आएगा। हाँ, कितना मस्त है देखो। ये देखो ये पूरा इंडस्ट्री। हाँ, ये देखो ये टंडिश दिख रहा है आपको, ये देखो कॉम्प्लिकेटेड असेंबली है टंडिश। हाँ, तो ये यहाँ से ये क्रेन मोल्टन लैडल लाएगा। ये देखो ये लैडल भी रखा है यहाँ भी बंद कंडीशन में। तो लैडल फर्नेस से मोल्टन मेटल लाएगा, इसमें डालेगा, ये इधर आएगा 180 डिग्री घूम के। हाँ, यहाँ से चालू होगा प्रोसेस, यहाँ से यहाँ आएगा, आगे आएगा पूरा, यहाँ से पूरा ऐसा आगे आने के बाद इधर कट करेंगे एंड इट विल बी कंटिन्यूड इन द रोलिंग इंडस्ट्री। ऐसा है। ये देखो ये भी 3D एक अच्छा है। हाँ, ये प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ओके, तो ना इसके बाद एक डाई कास्टिंग नाम का है, डाई कास्टिंग, जस्ट एंड डिफेक्ट। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे डाई कास्टिंग मेथड। ओके, बेसिकली हॉरिजॉन्टल डाई कास्टिंग, वर्टिकल भी है ग्रेविटी डाई कास्टिंग, लेकिन हॉरिजॉन्टल डाई कास्टिंग ये बहुत फेमस है। ओके, जैसे सेंट्रीफ्यूगल में हॉरिजॉन्टल ज़्यादा फेमस है, वैसे हॉरिजॉन्टल डाई कास्टिंग बहुत फेमस है। एंड जनरली वो लो मेल्टिंग मेटल के लिए रहता है, व्हाइट मेटल, एल्यूमिनियम के लिए बहुत फेमस है। अपने मुंबई में है डाई कास्टिंग इंडस्ट्रीज बहुत कुछ, रबाड़े में है, बाद में इधर गोदरेज में डाई कास्टिंग का उनका एक प्लांट है। सो है ऐसा। And one more thing we are going to study the next lecture, that is various types of casting defects. Okay, कास्टिंग डिफेक्ट देखेंगे, और कास्टिंग डिफेक्ट देखने के बाद उनको कास्टिंग डिफेक्ट कैसा हम लोग मेजर करते हैं, मतलब कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। उसका मैंने मेरा खुद का स्लाइड्स है, मैंने ये खुद बनाया है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। दैट इज आवर नेक्स्ट टारगेट। ओके देन बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है।